Hello students, we were discussing chapter number 6 tissue. Today we will discuss the animal tissue explanation. As you all know that there are four types of tissue: connective tissue, epithelial tissue, muscle tissue and nervous tissue. We have already discussed about the epithelial tissue, which has squamous epithelium tissue, scarified squamous epithelium tissue, cuboidal epithelium tissue, columnar epithelium tissue. And we have discussed this in detail, so I don't think that there is any confusion left, but if left you can ask me in group. Moving ahead, now come to connective tissue. There are so many confusions about its division and how does it work, so I am just going to resolve that all today. First thing, like in epithelial tissue you all have studied that there is no intercellular space, that all are very tightly packed. But when we talk about connective tissue, the cells of connective tissues are largely spaced and loosely spaced. It means what कि वो लोग उनकी जो spacing होती है, it means the way they all are fixed, that is not tight, that is very loose. So the cells of connective tissues are very loosely spaced. And when we talk about their division, there are four types of division. First, areolar; second, adipose; third, skeletal; fourth, fluid. When we talk about areolar tissue, ठीक है, areolar tissue, this is found between skin and muscle and also in bone marrow. What does it do? बेसिकली इसका फंक्शन होता है कि जितना भी स्पेस है इनसाइड द ऑर्गन, इट फील्स दैट, और क्या करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है, एंड इट ऑल्सो रिपेयर्स ऑफ द टिश्यू. सो एरिकुलर टिश्यू विच इज अ पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, it is found between skin and muscle. It fills the space inside the organs, supports internal organs and help in repair of tissue. Then second type, that is your adipose tissue, skeletal and fluid, which is divided into lymph and blood. तो बेटा ये जो आपका एडिपोज टिश्यू है, डेट टिश्यू, एरियोलर टिश्यू जो है आपका, एरियोलर टिश्यू डेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, टेंडन और लिगामेंट, क्योंकि ये स्किन और मसल के बीच में पाया जा रहा है, ठीक है, और बीच के स्पेस को कवर कर रहा है, तो इसका डिवीजन दो तरह से किया गया, डेट इज टेंडन एंड लिगामेंट. टेंडन्स क्या होते हैं? विच कनेक्ट मसल्स टू बोन, ठीक है, मसल्स और बोन्स को जब कनेक्ट करेंगे डेट इज टेंडन्स. एंड व्हेन देयर इज कनेक्शन ऑफ टू बोन्स देयर विल बी लिगामेंट. So ligaments are more flexible, tendons are less flexible. And when we talk about strength, ligament has less strength while tendons have more strength. Then there is adipose tissue, second type, adipose tissue. Adipose tissue का मेन मतलब वो होता है कि that they all store fat, ठीक है, तो हम इसको फैट स्टोरिंग टिश्यू भी कहते हैं. अब आपकी इपिथेलियल लेयर है, उसके नीचे एडिपोज टिश्यू रहेगी. वाई? टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट. आपने देखा होगा जो पोलर बियर होता है उसकी बॉडी में एक लेयर पाई जाती है विच इज नोन एज ब्लबर. दैट ब्लबर लेयर इज completely made up from adipose tissue. What does it do? It protects polar bear from the chilling temperature of outside. एंड एडिपोज टिश्यू का मेन फंक्शन ये रहता है कि इट स्टोर्स फैट एंड इट ऑल्सो एक्ट एज एन इंसुलेटर. देन स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं दे आर द मेजर पार्ट फॉर द स्केलेटल सिस्टम. सो इसके भी टू टाइप्स होंगे, बोन एंड कार्टिलेज. बोन क्या होगा? बोन मैट्रिक्स विच इज मैट्रिक्स मतलब बेटा जो उसके अंदर लिक्विड है, ओके. So bone matrix composed of protein and mineral salt, while when we talk about cartilage, there is composed of matrix proteins only, no mineral salt. Bone contains blood vessels, while when we talk about cartilage, it does not contain blood vessel.
and bone is located in the skeletal system. While when we talk about cartilage, they are present in nose, ear and larynx. आपको अपने कान को पकड़िए, ठीक है, उसके ऊपर का जो पार्ट ऐसे निकला हुआ है, या फिर ईयर लोब जो आपके नीचे है, ये जो कान का पिन्ना होता है ना, इस पूरे पोर्शन को बोलते हैं पिन्ना। इस कान के पिन्ने को आप सोचिए, इसको थोड़ा मूव कीजिए, ये इजीली मूव हो रहा है ना। अब आप एक काम कीजिए कि जो आपके हाथ की ये जो आर्म पोर्शन है सामने का और जो एल्बो है, इसके बीच का जो पार्ट है जहाँ पे आप ब्रेसलेट या फिर कंगन ये सब पहनते हैं, उसको बेंड करने की कोशिश कीजिए। क्या ये बेंड हो रहा है? नहीं। ये जो पार्ट्स है, या फिर द पोर्शन प्रेजेंट बिटवीन द टू नॉस्ट्रिल्स ऑफ योर नोज, ये जो पोर्शन है ना जिसमें कई लोग पियर्सिंग भी कराते हैं, दीज ऑल आर कार्टिलेज। तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। एंड कार्टिलेज को आप इजीली चेंज कर सकते हो, बेंड कर सकते हो, बट इन केस ऑफ बोन दैट इज नॉट पॉसिबल, सो दैट इज द हार्डेस्ट टिश्यू, while cartilage is softer in comparison to that. Then blood. अब ये blood क्या है? That is a part of fluid connective tissue. I think आपको ये याद होगा ये डिवीजन। तो अगर हम इसे बात करें fluid connective tissue की, तो it has two type, blood and lymph. Blood क्या होता है? It's a connective tissue which is made up of fluid which is plasma and RBC, WC and platelets which is also known as elements. ब्लड कैसा होता है? इसका वॉल्यूम 5 to 6 लीटर्स तक इन मेल्स में रहता है एंड 4 to 5 लीटर्स इन फीमेल। इट इज़ स्लाइटली एल्केलाइन, ओके। बेसिक नेचर इसका होता है विद द pH 7.4 एंड इस कलर वेरीज फ्रॉम ब्राइट टू डार्क रेड। नाउ कम टू टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, क्या कौन सी होती हैं? देयर आर RBC, WC, प्लेटलेट्स। RBC क्या करती हैं? बेसिकली दे हेल्प in exchange of O2 and CO2। RBC को हम एक और वर्ड बोलते हैं, वो है एरिथ्रोसाइट्स। नाउ कम टू प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। और जैसे जब आपको कभी चोट वोट लग जाती है तो फिर आपने देखा होगा कि आपको अगर एक कट मार्क लगा, आफ्टर सम टाइम वहाँ से ब्लड का सिक्रेशन बंद हो जाता है, एक छोटी सी ऊपर सी लेयर बन जाती है एंड धीरे धीरे उसकी हीलिंग होती जाती है। डेट इज़ थ्रोम्बोसाइट्स। वहाँ पे जो प्लेटलेट सेल्स रहती हैं वो आपकी ब्लड को कोगुलेट कर देती हैं, वहाँ पे क्लॉटिंग कर देती हैं ताकि आपका ब्लड का लॉस ना हो। सो दीज ऑल थिंग्स आर हेल्प डन विद द हेल्प ऑफ प्लेटलेट्स। देन WBC, which is mainly responsible to fight against infections, and WBC are also called as leukocytes. Now lymph. Lymph is a clear colorless water fluid which is derived from tissue and which is found in lymph vessels. It is इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें, दिस इज सिमिलर टू ब्लड, बट इसमें प्लाज्मा प्रोटीन बहुत ही कम होता है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी बेटा कि व्हेन द हार्ट पंप्स द ब्लड ग्रोज फ्रॉम द आर्टरी and blood puts pressure on artery wall. When it goes outside through the artery, it puts some pressure on the artery wall. That pressure is known as blood pressure. जैसे आप लोगों ने देखा होगा लोग BP मेजर करते हैं कि ब्लड प्रेशर समय कितना है। बोन टिश्यू के लिए एक चीज़ और देख लीजिए कि बोन टिश्यू विच इज अ पार्ट ऑफ स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या होती है? बोन्स आर अलाइव एंड इट्स अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच हैव वेसल्स, नर्व्स, मैट्रिक्स and they all are give support, protection and movement. कार्टिलेज की अगर हम बात करें बेटा, तो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज 3 टाइप्स होते हैं। इसको आप देख भी सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है। इलास्टिक कार्टिलेज विच इज़ मेनली फाउंड इन ईयर, ठीक है, दिस ईयर पन्ना। हाइलिन कार्टिलेज विच इज़ मोस्ट फ्लेक्सिबल, सेकेंड मोस्ट पॉसिबल, दैट इज फाउंड इन नोज एंड रिब्स। बट अगर हम बात करें फाइब्रो कार्टिलेज की, तो उसमें बहुत ही लीस्ट फ्लेक्सिबल होता है, वो उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता, विच इज़ फाउंड इन नी एंड वर्टिब्री। जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में वर्टिब्री बनी होती है ना, ये उसमें पाया जाता है।
आपने देखा होगा कि जो एथलेटिक्स होते हैं या फिर जो स्प्रिंटर्स होते हैं हु यूज टू रन अ लॉट, यूजुअली आफ्टर एज उनके जो कार्टिलेज होते हैं वो वॉर्न आउट हो जाते हैं, घिस जाते हैं। सो देयर इज़ द रिप्लेसमेंट सर्जरी। सो वहाँ पे क्या होता है, कार्टिलेज को चेंज कर दिया जाता है, देन दे कैन ईजिली मूव। सो इलास्टिक कार्टिलेज विच इज़ फाउंड इन ईयर, वो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। देन हाइलिन कार्टिलेज सेकेंड लेवल पे मोस्ट फ्लेक्सिबल विच इज़ फाउंड इन नोज एंड रिब्स, and fibrocartilage which is least flexible. Then muscular tissue बेटा, muscular tissue क्या है, the organ composed one of three types of muscle tissue, जैसे इसमें स्केलेटर, कार्डियक, स्मूथ, ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। एंड ये क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मूवमेंट। अब ये क्या होता है, वॉलेंट्री मूवमेंट मीन्स जब जैसे कि आपने चाहा कि आप अपने फिंगर्स को ओपन करें, ओके, सो दीज ऑल थिंग्स आर अंडर योर कंट्रोल, यू कैन ओपन योर फिंगर्स, यू कैन क्लोज योर फिस्ट, दीज थिंग्स जो कि आप अपने जो कंट्रोल कर सकते हो, दीज ऑल मूवमेंट्स आर कॉल्ड वॉलेंट्री मूवमेंट। बट आपकी हार्ट बीट जो है when it will start, when it will slow down, you can't control that, right? that is involuntary, मतलब कि वो आप जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो कि जो अपने से होता है, तो सो दैट इज इनवॉलेंट्री मूवमेंट। अब स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल, दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। इनमें क्या डिफरेंस होता है, स्केलेटल मसल्स जो रहेंगी ये स्ट्रिएटेड, स्ट्रिएटेड का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर ऐसी लाइनिंग वाली स्ट्रक्चर बनी रहेगी, ठीक है, ऐसे ऐसे लाइनिंग की स्ट्रक्चर बनी रहेगी, ये वॉलेंट्री रहेंगी। एंड इट मीन्स इट्स अंडर दीज ऑल आर अंडर योर कंट्रोल एंड यू कैन चेंज देम, you can move them, and these are usually attached to the skeleton. They like the muscles which are found in your hand. देन स्मूथ मसल डेट इज़ नॉट स्ट्रिएटेड, मतलब कि उसके अंदर वो लाइनिंग नहीं रहेगी, स्पिंडल शेप रहेंगे एंड यूनी न्यूक्लिएटेड रहेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, हियर इज मल्टी न्यूक्लिएटेड इन केस ऑफ स्केलेटल मसल, बट व्हेन वी टॉक अबाउट स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, बोथ आर यूनी न्यूक्लिएटेड। यूनी मीन्स एक एक ही न्यूक्लियस मिलेगा यहाँ पे। एंड स्मूथ मसल्स जो क्या करती है, बेसिकली ये कवर करती हैं इंटरनल ऑर्गन्स को। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कार्डियक मसल्स, दे आर ऑल्सो स्ट्रिएटेड, यहाँ पे भी लाइनिंग है, ब्रांच्ड है और यूनी न्यूक्लिएटेड है। इनवॉल्यूंटरी फंकस है, इट मीन्स यू कांट कंट्रोल दैट, एंड दे आर ओनली प्रेजेंट इन द कवरिंग ऑफ हार्ट। देन आपका नर्वस टिश्यू, तो you all know that the cells of nervous tissues are known as neurons. They are the structure and function unit of a nervous system and they are specialized for rapid communication। मतलब आपके माइंड ने कोई आपको सिग्नल दिया कि that there is danger, you have to move out from there, और तुरंत उस पर वर्क हुआ। So for the rapid communication there is nervous system throughout our body, and a neuron is composed of a cell body which have dendrites and axons। आपने ये structure ही बनाया होगा, and I think the dendrites, cell body, nucleus, axons all are here। So thank you for watching this, and if you haven't subscribed my channel yet, please subscribe। Take care a lot।